Hello students, physics class is there. In previous section we have done the practice problem 2. In this section we are going to do practice problem 3 of equation of motion. Practice problem 3, the first sum. Now in third sum what we have, a racing car initially at rest. Okay, racing car initially at rest and picks up a velocity of 180 km per hour in 4.5 seconds. It means we have initial velocity 0, that is u is equal to 0. Why u 0? Because the car is initially at rest. It means you can see, you can write here u is equal to 0. Why? Because initially at rest. V is equal to 180 km per hour. Convert it into meter per second. 180 upon 5 upon 18 meter per second. Then we get 18 1 the 18, 18 10 the 180. Then 10 into 5, that is a 50. It means V is equal to 50 meter per second. Okay, and time t is equal to 4.5 seconds. Find the A and S. Okay, first of all we are going to apply the first equation, that is V is equal to u plus 80. Okay, now V is 50, u is 0 plus A find करना है आपने, t is 4.5. It means A is equal to 50 divided by 4.5. Okay, then you can write 50 upon 45 into 100. जो पॉइंट कट करके हमने 10 लगा लिया. इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 10 द 50, 5 9 द 45. इट मीन आपके पास आ गया 100 डिवाइड बाई 9. तो इसको 100 डिवाइड बाई 9, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 11.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ए की वैल्यू आ गई 11.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ए की वैल्यू आ गई आपके पास. ठीक है, ये ए की वैल्यू है. अब हमने और क्या फाइंड करना, एस. तो एस के लिए बेटा आप 2 इक्वेशन लगा सकते हो. वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as भी लगा सकते हो, या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर भी अप्लाई कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ थर्ड इक्वेशन. विच वन, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, दिस इक्वेशन. नाउ वी इज़ 50, इट मीन 50 स्केयर माइनस यू इज़ 0 स्केयर is equal to 2 into a is 11.11 into s we want to find. Then we get 50 into 50 is equal to 2 into 11.11 into s. तो s आपके पास क्या आएगा, s आएगा 50 into 50 डिवाइड बाई 2 into 11.11. इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा, 2 1 द 2, 225 द, ठीक है, ये आएगा 50 इंटू 25 डिवाइड बाई 11 इंटू जो पॉइंट हटा के मैंने ऊपर लगा दिया 100. ठीक है, इन सभी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, बेटा इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 125,000 अपॉन 111. इसको डिवाइड करते हैं, देन वी गेट 112.5 मीटर. एस की वैल्यू आ गई है. ठीक है, सेकंड पार्ट सेम है इसका. I just tell you the value only, solve by yourself. Second problem, in that problem a motorbike runs at 5 meter per second. It means u is equal to 5 meter per second. V is equal to 30 meter per second.
and t is equal to 5 seconds. Okay, find again a and t. Which formula you have to apply? v is equal to u plus at. First formula, apply this. Okay, second formula, v square minus u square is equal to 2as, and find out v and find out a, and from here a, from here s. Calculate it and find out the values. This is the practice problem 3. Okay, now the practice problem 4. Practice problem 4. First sum. Practice problem 4, you can see here a motorbike running at 90 km per hour speed and is slowed down to 18 km per hour in 2.5 seconds. Calculate the acceleration and distance. This is same numerical as we have done. What is given? Firstly, u is 90 km per hour. Convert it into meter per second. It means 90 into 5 upon 18. We get 18 5 than 90. It means 25 meter per second is u. v is equal to 18 km per hour. That is 18 into 5 upon 18. 18 से 18 कैंसिल तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड. आपके पास v और u की वैल्यू आ गई. ठीक है, और t की वैल्यू गिवन है 2.5 सेकेंड्स. तो फाइंड करना है आपने a एंड s. तो a फाइंड करने के लिए क्या करोगे? v इज़ इक्वल टू u प्लस 80. तो यहाँ से a फाइंड हो जाएगा. v है आपका 5 इज़ इक्वल टू u की वैल्यू है 25 प्लस a इंटू टी की वैल्यू है 2.5. ठीक है, तो जी आपके पास आ गया 5. ये प्लस का 25 है, यहाँ पे माइनस का 25. ये आ गया 2.5a. 5 माइनस 25 दैट इज़ 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 2.5a. ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास -20 अपॉन 2.5. सॉल्व करके आएगा -20 अपॉन 25 इंटू पॉइंट हटा के जो 10 आएगा वो ऊपर आ गया. इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 1 द 5, 5 4 द 20. तो जो आ गया -4 इंटू 2 दैट इज़ -8 meter per second square. Now you can see a is negative. A is negative, that is retardation. It means retardation is 8 meter per second square. ठीक है, now the second part is about we want to find the distance s. s find करना है. Now to find s what we have to do? Now s 2 इट मीन फार्मूला s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, और एक और फार्मूला है. तो मैं अब यहाँ पे सेम फार्मूला लगा रही हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as. नाउ v की वैल्यू आपके पास है 5, इट मीन 5 स्क्वायर माइनस u की वैल्यू आपके पास 25 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू आपके पास आ गई -8 इंटू s. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो जी आपके पास आ गया -600 इज़ इक्वल टू -16s. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा, देखो -600 इज़ इक्वल टू -16s. ठीक है, तो जहाँ से s की वैल्यू जो आएगी -600 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल. ठीक है, 600 को अगर हम 600 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 37.5 मीटर. तो ऐसा आ गया आपके पास 37.5 मीटर. दिस इज़ अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4th फर्स्ट सम. ठीक है, नाउ द सेकंड सम आई जस्ट टेल यू द वैल्यू ओनली, यू हैव टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ.
Now in second problem, what is given? A cyclist driving at 36 km per hour and stop his motion. इट मीन कि पहले मूव कर रहा था, बाद में वो स्टॉप हो गया. ठीक है, पहले मूव कर रहा है, बाद में क्या हो गया, स्टॉप हो गया. तो इसका मीनिंग है कि आपको जो u गिवन है वो क्या है 36 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो क्या आएगा, देखो 5/18 कर लिया तो आएगा 10 मीटर पर सेकंड u आ गया. और v की वैल्यू है 0 बिकॉज वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया था. ठीक है, और t की वैल्यू गिवन है आपको 2 सेकेंड्स. सेम एज आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है जो नेगेटिव में आंसर आएगा इसका. ठीक है, एंड अब अपने फाइंड करनी वैल्यू s की. ठीक है, बाय अप्लाइंग सेम फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस AT एंड सेकेंड फार्मूला v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. अप्लाई दीज टू फार्मूला. ठीक है, पुट द वैल्यूज u10 v0 t 2 second, find out a and s as we have done in our previous numericals. Yes, thank you. Now today you have to complete the numerical problems from practice problem 1 to practice problem 4.